Hey, hi everyone. I hope you all must be doing very good, right? So, 100 days to go for prelims, and in this particular video, we will be discussing about that what should be our 100-day strategy to cover the prelims, right? Almost 98, 99 days बचे हुए हैं. Let's take it 100. ठीक है, 100 days में हम कैसे प्री को एस कर सकते हैं? That is what we will be discussing in this particular video, right? So let's get started. Prelims is coming and you all should be very aware of this, right? So first and foremost, guys, I would request you very sincerely, very honestly, daily 1 hour of CSAT is must. This is must at all cost, right? From day one. ठीक है, लास्ट के मंथ में कर लेंगे सी सैट, ठीक है, 20 डेज में कर लेंगे, ब्रेक में रिवाइज कर लेंगे. एट योर ओन रिस्क, at your own risk. One thing I would like to tell you, that cutoff of UPSC these days is going down and a chief role is being played by CSAT itself. CSAT काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूपीएससी की कट ऑफ में नीचे जाने में. सो डोंट बी लाइक जीएस बहुत टफ आ गया. इट्स नॉट दैट. नो वन एनालाइजेस दिस. Many people they get out due to CSAT and due to which the cutoff gradually goes down. So cutoff नीचे जाने का एक बहुत बड़ा रोल CSAT प्ले करता है. So please watch out for this. First and foremost, this you should be remembering at all cost. At all cost. Right? So CSAT abhi se kare, right? And we are also starting off with the second batch on the 10th March. So you guys are most welcome to join this. I especially asked Ayushman to cover this in a very nice manner. Right? He is from IIM Lucknow and he knows how to solve this very quickly. Right? Very quickly. And all those techniques, tricks, tips, you guys are most welcome to join this. And those who join it before 5th of March, they will be getting the comprehension course of 10 hours free. Right? This is starting from 10th March. So जो भी 5th मार्च से पहले एनरोल कर लेगा, ठीक है, he will be getting the comprehension course full free of cost, right? That was taken by Rachita ma'am. ठीक है. Also we are running out the foundation course of PSIR optional. So if you are preparing for 23 and आगे के लिए, ठीक है, so you guys are most welcome to join this as well. This is taken by me. Daily we have live classes and उसमें recordings भी available होती है, right? So let's get started with this. ठीक है. एंड सबसे पहले याद रखिए सी सैट के बारे में बता चुका हूं. आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन. ठीक है. सी सैट इज मस्ट एंड डे वन से करना है बिकॉज यूपीएससी में दो पेपर आते हैं, GS1 प्लस GS2, दैट इज सी सैट. ठीक है. सो डोंट जोक विद इट. डोंट जोक. डेली 1 आवर करना है एट ऑल कॉस्ट. ठीक है. चाहे आप अपनी पढ़ाई को वहां पे बीच में रोक दें, ठीक है, कि चलो अब टाइम है 9 से 10 का एंड जस्ट स्टार्ट ऑफ विद सी सैट. ठीक है. 9 से 10 को आप 1 घंटा सी सैट को जरूर दें. Let's get started with the static part. ठीक है. Now GS1 basically एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा. I am telling you again, this is a golden rule of to crack the pre. Remember, static is the king maker. Static is always the king maker. Static subjects are very conquerable and are very easy and will come in lot of chunks. मतलब काफी ज्यादा वेटेज होता है स्टैटिक का, राइट? So please don't ignore static. What do I mean to say? करंट अफेयर्स को थोड़ा बैकहैंड में डाल दो चलेगा, बट स्टैटिक को कभी नहीं छोड़ना है. एंड फर्स्ट 45 days should be exclusively given to static. Revise static. अभी हम बात करेंगे, ठीक है, राइट? एंड ऑब्वियसली 1 hour ऑफ सी सेट वो तो डेली आपको करना है फॉर द नेक्स्ट 90 days. वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, राइट? 1 hour ऑफ सी सेट प्लस 45 days में नेक्स्ट आपको स्टैटिक पे रिवाइज करना है. एंड व्हाट आर द स्टैटिक के 6 सब्जेक्ट्स. बेसिकली देखा जाए तो 5 भी है, कुछ लोग 6 भी बोल देते हैं. 6 सब्जेक्ट्स पे आपको अच्छी कमांड बनानी है एंड 45 days आर वेरी गुड टू रिवाइज दिस. आई एम अज्यूमिंग कि आज आपने पहले पढ़ रखा है, वैसा नहीं है किताबी आज लेके पढ़ रहे हो तो सर पॉलिटी फिर 7 दिन में कैसे हो जाएगी? डेफिनेटली 15-20 दिन लगेंगे तब तो, ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग आपने एक बार पहले से पढ़ रखा है एंड यू हैव स्टडीड थ्रू आउट द ईयर. सो नाउ इज द टाइम टू रिवाइज एंड आई हैव गिवन यू अ रफ शेड्यूल. जैसे पॉलिटी, राइट, स्टार्ट इसी ऑर्डर में फॉलो करें, ठीक है. स्टार्ट ऑफ विद पॉलिटी. अगर आप पॉलिटी से स्टार्ट ऑफ करते हैं, ठीक है, सो पॉलिटी को यू कैन गिव 7 days. ठीक है. ट्राई टू गिव लेस देन 7, मतलब मैक्स 7 to 8 days आप दे सकते हैं. जैसे ही पॉलिटी इज फिनिश्ड फ्रॉम लक्ष्मीकांत, राइट, द सोर्स इज ऑल्सो देयर लक्ष्मीकांत, जस्ट गिव द सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ दिस. सब्जेक्टिव टेस्ट इसके देना स्टार्ट करें, राइट, ठीक है. तो तुरंत आप सब्जेक्टिव में किसका दे सकते हैं? यू कैन गो फॉर विजन आईएएस या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी कोचिंग का आप सब्जेक्टिव दे लें, ठीक है. द पर्पस ऑफ सब्जेक्टिव इज टू चेक वेदर यू हैव रिवाइज दिस वेरी वेल
और यू कैन से जो लूप होल्स है, जो मिसिंग पार्ट है, दैट गेट्स अकोमोडेटेड। तो वो आपका स्टैटिक को काफी अच्छा उस सब्जेक्ट का कर देगा। सो पॉलिटी इन 7 days प्लस उसी का ही जैसे ही हो जाए, एक आपने स्टैटिक टेस्ट दे लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट 7 days इकोनॉमिक प्लस उसी का ही सब्जेक्टिव टेस्ट किसी भी कोचिंग का नेक्स्ट 7 days में, ठीक है। देन अच्छा, इकोनॉमी वेयर यू शुड बी डूइंग इट फ्रॉम, यू कैन डू इट फ्रॉम मुंडाल नोट्स, ठीक है, और यू कैन डू इट फ्रॉम श्री राम नोट्स, किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। मॉडर्न हिस्ट्री plus its subjective test 5 days and that you should be doing it from spectrum। अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, राइट, दैट विल बी वेरी वेरी हैंडी, ठीक है। दीज आर लो लाइंग लो हैंगिंग फ्रूट्स। इसको मैंने कह समझ जाए, पॉलिटी एंड इकोनॉमी लिख के ले लो, 80 मार्क्स तक का आएगा ही आएगा प्री में, कुछ भी कर लो, 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे ही, राइट। दे आर हायरिंग यू फॉर द पॉलिटिकल पब्लिक सर्विस, वोंट दे आस्क यू अबाउट पॉलिटी, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है। देन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, जो कि ज्योग्राफी को अलग है मैं रखा है, एनवायरमेंट को अलग रखा है, बिकॉज एनवायरमेंट दीज डेज इज वेरी वेरी हैंडी, ठीक है। प्लस देयर सब्जेक्टिव टेस्ट दैट शुड बी डन इन द नेक्स्ट 10 days, राइट। एंड फाइनली मैंने इसीलिए पीछे रखा है, आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट प्लस सेलेक्टिव मिडाइवल शुड बी गिवन 12 days फॉर दिस। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, अराउंड अबाउट आपके 40 to 45 days के अंदर आ जाएगा आपका एक स्टैटिक रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, राइट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द स्टैटिक सब्जेक्ट, ठीक है। एंड हाउ यू शुड बी रिवाइजिंग दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मस्त। तो मैं ये रब कर दे रहा हूं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, इफ यू वांट टू टेक इट, ठीक है। एंड स्टैटिक इज द किंग मेकर, स्टैटिक से पक्के क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लो, राइट, एंड वो आपके हमेशा सही होंगे, ठीक है, राइट। नाउ द पॉइंट इज हाउ डू यू रिवाइज दिस, रिविजन से ज्यादा कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवाइज से ज्यादा कैसे करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट I have made a YouTube video last year how to revise quickly from books for prelims. Just watch this. I'll give you the link below and that is on the second channel जो अपना Simple Smith है for the GS, right? उसमें आप देख सकते हैं, शुरू की 2-3 वीडियो में मिल जाएगा, right? ठीक है, right? And quickly flip the pages. Try to cover a lot of things. ठीक है, पूरा पूरा टाइम दे, इफेक्टिवली दे, एंड जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें। डोंट गेट स्टक विद कि हाँ भाई आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो 90 दिन है, 100 days है। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बिकॉज रिमेंबर द पार्किंसंस प्रिंसिपल, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल टाइम, सो ट्राई टू क्रिएट एन अर्जेंसी, ठीक है। सेट योर गोल्स कि भाई अपना प्री 45 days बाद है, और इमेजिन करो सिर्फ स्टैटिक ही आ रहा है, तो मैं क्या करता, बताइए, तो मैं क्या करता, ठीक है। आई वुड हैव रिवाइज जस्ट स्टैटिक फॉर द नेक्स्ट 45 days, दैट इज वॉट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये 45 डेज में आपका प्लस आपके सभी सब्जेक्टिव टेस्ट में एटलीस्ट 2-2 सब्जेक्टिव टेस्ट दे लें, पॉलिटी के भी सबके 2-2 दे लेंगे, तो आपके 12-15 सब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। दे आर कवर्ड फ्रॉम द बेसिक बुक्स, राइट, उससे आपकी बेसिक बुक्स कवर हो जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? राइट, ओके फाइन। फॉर द नेक्स्ट 45 days, remember, for the next 45 days, very very important is to get into the mode of UPSC. And what is the mode of UPSC? ठीक है, the language of UPSC. What type of UPSC is asking question? That is based on UPSC previous year question. Remember, this is not of UPSC CSE. सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम के नहीं, यूपीएससी कंडक्ट्स एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन लाइक सीएसई, सीएपीएफ, सीडीएफ, ईपीएफओ, इन सभी के एटलीस्ट, सीएसई के प्रीवियस ईयर तो आप 40 इयर्स के एटलीस्ट देखे, 30 से 40 इयर्स के पेपर, बट बाकी सीएपीएफ, सीडीएफ, ईपीएफओ के सेलेक्टिवली लास्ट 5-7 इयर्स के पेपर्स को अच्छे से देखें, राइट। एंड द रेलेवेंट क्वेश्चंस, these are must, these are must, and try to solve them, try to solve them। and while solving, again while solving, don't just see कि हाँ भाई मेरा आंसर आ गया चलो आगे बढ़ता हूँ, नहीं 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 नहीं, try to see their options, try to see the pattern, what type of questions are they asking, see how they are eliminating the options in every one, ठीक है। अगर आप elimination टेक्निक लगाओगे, देखोगे, तो यूपीएससी में भी आपको यू विल फाइंड द पैटर्न, ठीक है, जिसके में आप चेक करोगे कि जनरली यूपीएससी में सारे सही नहीं होते, एक स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है, इस टाइप की, दैट इज इंट्यूशन, वो डेवलप होगा, राइट। एंड दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू एज द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ट्राई टू डेवलप दैट एलिमिनेटिंग टेक्निक वाला इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करें, राइट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से,
ठीक है, अपनी गट फीलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू सी द प्रीवियस क्वेश्चन प्लस टुडेज ऑप्शन टुडेज ऑप्शन कैन बी टुमारोज क्वेश्चन। आज जो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, कोई नेशनल पार्क वगैरह पूछा है, तो 3-4 और नेशनल पार्क दिए, जस्ट सी वेयर आर दीज नेशनल पार्क्स लोकेटेड, they can be tomorrow's question as well, right? And UPSC has the habit of asking these parks constantly. साउथ के पार्क को 2-3 साल से लगातार पूछ रहा था, अब उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट इट शुड बी, राइट। सर अभी तक आपने करंट अफेयर का नहीं बताया, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। करंट अफेयर्स शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। लास्ट प्रायोरिटी मतलब इन द सेंस हवा नहीं बनाना है, डोंट मेक इट हवा। डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस से 1 से 1.5 इयर्स के आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये बोल लेंगे सर मुझे डेली 1 घंटा बस करंट अफेयर करना है फ्रॉम वन मैगजीन, कुछ भी रिविजन, जो 1 आवर यू कैन डू इट। वन मैगजीन यू शुड फॉलो, ईदर यू कैन फॉलो PTC 65 और जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, या इफ यू हैव मेड एनी काइंड ऑफ करंट अफेयर नोट्स, बस दीज डेज मार्केट्स में कोई अलग अलग नोट्स चल जाएंगे, ठीक है, रातों रात नए नोट्स आ गए, भाई वो कर लो ये कर लो, और बाद में कुछ नहीं हो रहा है, सब इधर उधर के ही छाप रहे हैं, ठीक है। सो ट्रस्ट वन सोर्स, अब वो कोई भी हो, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी कोचिंग, ठीक है, चाहे आप कोई भी कोचिंग के कर रहे हो, बस एक का करना, दूसरी का नहीं करना है, एल्स यू विल बी ट्रैप्ड। एंड इवन इफ यू स्टडी फॉर 1 आवर करंट अफेयर्स अगर आप करोगे, जैसे आपने ये टास्क ले लिया कि सर मुझे 1 मंथ का करंट अफेयर 3 दिन में करना है, ठीक है, दैट्स इट। तो लास्ट 12 ईयर्स के अगर आप, लास्ट 12 मंथ्स के अगर आप करके जाओ, 15 मंथ्स के, 15 3 45, ठीक है, आप आराम से 45 डेज में करंट अफेयर प्लस उन्हें 2 से 3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो, एंड रिवाइज इट थ्रू मैगजीन्स, क्विकली फ्लिप द पेजेस। बिकॉज वाई? बिकॉज अगर करंट अफेयर बहुत डीप आया, विच दे माइट आस्क, 1-2 क्वेश्चन तो ऑप्शन आप पूछेंगे, दे वांट टू शो दैट वी आर अ टफ एग्जाम, तो वो किसी से नहीं होगा। एंड अगर वो बहुत इजी आ गया, जैसे 2016 में बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव इज ऑफ पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, किसका है, तो ये सबसे हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट मेक इट अ हुआ, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। पीपल मेक इट अ हुआ, भाई इसके नोट्स आ गए, कोई ये IAS ने नोट्स निकाल दिए, वो नोट्स निकाल दिए, भाई उन्हें तो बेचना है, ठीक है, दे विल पब्लिश, ठीक है, एवरी कोचिंग डज दैट, ठीक है, बट एक को फॉलो करें। आई एम नॉट सेइंग वो गलत है, सही है, बस उन्हीं को ही फॉलो करें, ट्रस्ट दैट, ठीक है, राइट। नो वन इज एबल टू प्रेडिक्ट द पेपर। उसके बाद सब कोचिंग वाले कहते हैं हाँ हमारी से आया था, हमारी से आया था, हाँ भाई तुम्हारी से आया था, ठीक है, बट यू रियली नो द क्वेश्चंस एक्चुअली कम फ्रॉम दिस, right, the previous year standard, and that is why I have kept this for the last 45 days. Why? Because then you will be getting into the language of UPSC. तो डेली ये पेपर्स को करें, प्लस एवरी सेकेंड थर्ड डे ट्राई अ फुल लेंथ टेस्ट ऑफ एनी कोचिंग, बी इट विजन, बी इट फोरम, बट यस फुल लेंथ टेस्ट यू शुड ट्राई मिक्स करें। किसी कोई और कोचिंग का कर लिया, किसी दिन किसी का कर लिया, मतलब 2-3 कोचिंग का भेजे, ऐसा भी नहीं है हर का कर लिया, ठीक है, 2-3 जो भी मेजर आप फॉलो करते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, दिस इज व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द प्री। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज द की पॉइंट विच आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन। बहुत सारे लोग इसको छोड़ते हैं, दे डोंट स्पेंड द टाइम ऑन CDS पेपर, CAPF पेपर, you will see a lot of topics UPSC is repeating in CSE। भाई उनके पास भी तो लिमिटेड टॉपिक हैं, राइट, टॉपिक्स तो लिमिटेड है, एग्जाम तो तब से कंडक्ट हो रहा है। हाउ मेनी टाइम दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? कम से कम 50 बार पूछ लिया होगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज समझो, ठीक है, दे स्टैटिक इज लिमिटेड, करंट अफेयर्स इज वाइड। अब कुछ भी करंट अफेयर हो जाएगा, 50 साल पहले कुछ पूछ लिया यूक्रेन वगैरह के, कुछ न्यूक्लियर डील वगैरह का, तो तुम परेशान हो गए क्या, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन वो डालेंगे, राइट, एंड दैट इज वेयर वी फॉल फॉर द प्रे। हम उस एक क्वेश्चन के चक्कर में 99 छोड़ देते हैं, हम एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा का पूरा CSAT छोड़ देते हैं, ड्यू टू विच वी फेल टू क्वालिफाई CSAT, राइट, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, शुड आई स्टडी फॉर मेंस? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। Why, sir? Because pre itself is 70% mains of GS. Won't polity come into GS? Won't history come into GS? बोलो, won't geography come into GS? Won't ancient medieval जो come into GS? कैसी बात कर रहे हो? प्लस तुम्हारा तो PSIR ऑप्शनल है, राइट, तुम्हारा तो 1B रिवाइज हो रहा है,
लक्ष्मीकांत को अच्छे से करो. You will use those cases judgments to write in mains PSI or optional. Right? History, you will use it again to write in paper 1 part B. Civil disobedience movement, non cooperation movement, वो सब कहाँ से? अरे इसी से ही तो पढ़ना है. Right? So please remember this. Right? So this is what I wanted to say. In 90 days, ठीक है, you can easily ace this. ट्रस्ट योर गट. यू हैव रिवाइज्ड. ठीक है, जस्ट वॉच दिस वीडियो. ठीक है, जो मैंने अपलोड करी, आई विल आल्सो गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मे बी इन द फर्स्ट कमेंट. हाउ टू रिवाइज दिस क्विकली. क्विकली कैसे करना है फॉर बुक्स फॉर फ्री. ठीक है, राइट. एंड आई एम बिट मच ऑक्यूपाइड दीज डेज. आई एम वर्किंग विद अ स्टार्टअप. Right, so due to this, I am very, very occupied. So sorry for not being regular on YouTube. But you guys are most welcome to connect with me on Telegram at Sumit is there, as well as on email, that is the psirclub@gmail.com. I'll be more than happy to help you. I hope this video was helpful, and if it was, please do share it to your friends. This is me, Sumit, signing off. Bye bye.